Okay, good morning, dear students. Today I will discuss about the flow, power, mass duration curve, and the silence features of the hydropower plant. This is the topic of Unit 4, and the subject name is the power plant engineering. Outline of the today lecture: what are the advantage, disadvantage of the hydroelectric power plant, hydrology and the hydrological cycle, flow duration curve, power duration curve, rainfall mass curve, important terms, site selections of the hydropower plant, elements. So some discuss about today first slides, the diagrams of the hydropower plant. This is the basic diagram of the hydropower plant in which the dam, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाटर स्टोरेज का काम करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज द हेड, कितने हेड से वाटर को ले आना है टरबाइन सेक्शंस में, उसका काम करता है डैम. एंड दिस इज द पेनिस्टॉक पाइप, and penstock main purpose is to carry the water to the turbine sides, and this is called the intake valve. यहाँ पे 1 minute. This is the inlet valve open to let the water flow to the turbine, and here this is the turbine, water force acting on the blades and turn the turbines. This is the transformer, high voltage transmission line, and after that turbine is coupled to the generator, is turned by the turbine, and from the after the expansion in the turbine blades, water flow to the river side through the draft tube. ड्राफ्ट ट्यूब एक लगा दी जाती है जिसके थ्रू वाटर जो है आफ्टर द एक्सपांशन वो रिवर्स में चला जाता है. तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, and the hydropower plant utilizing the water mass that flows due to the gravity to turn the turbine and thus turn to the coupled generator. जो भी आपका पानी है डैम से निकल के आ रहा है पेनिस्टॉक के थ्रू, नोजल पे अटैक कर रहा है, नोजल से टरबाइन की ब्लेड्स पे अटैक कर रहा है थ्रू द इनलेट वॉल्व. तो टरबाइन जो ब्लेड घूम रही है उससे अपनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी से फिर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं जनरेटर के थ्रू. तो जनरेटर में जो टरबाइन शाफ्ट रहती है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होती है. तो दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट in which the mechanical energy, electrical energy, all these energies which are replacing by one or which is transforming one by one, potential energy which is act in the reservoir side or the dam side, and after the potential energy which is going through the penstock sides converted to the mechanical energy, and before converting of the mechanical energy it is converted into the kinetic energy, and after that the kinetic energy which is acting on the turbine blades converted into the mechanical energy, and this mechanical energy after that converted into the magnetic energy through the magnetic actions, and through the connecting of the generator energy. After that magnetic energy it is converted into the electrical manner in the transformer sides or the generator sides. This is the final convergence of the energy. So if the water sources is available in a evidence manner and it is very cheap manner, then the initial investment is the high. हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, या बोलना चाहिए जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी लो रहती है. बट कंपेयर टू द अदर पावर प्लांट यदि हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी जो है बहुत कम है, क्योंकि वाटर इज इजिली अवेलेबल और डैम वहां पे लगाया जाता है जहां पे कि वाटर इजिली अवेलेबल रहता है. How it is work? This is the basic flow circuit diagram in which the reservoir, dam, generator side, transformer side, powerhouse, power lines, these are the shown in the figure. Intake, it is here presented where the water is supplying through the outer side catchment area, control gate, and penstock through the water is supplying to the turbine blade sides, and after that it is going into the working, converted into the mechanical energy into the electrical manner through the powerhouse, and after the electrical energy supplying into the power lines to the where it is the required. What are the advantages of the hydroelectric power plant? It is the less operational cost because of the source of the मेन जो आपका सब्सटेंस है वो इजिली अवेलेबल है, रिलायबल रहता है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इजी रहता है कंपेयर टू द थर्मल और अदर पावर प्लांट, पॉल्यूटेंट नाम की कोई चीज नहीं रहती है, लाइफ इज हाई मोर देन 50 इयर्स, पार्ट लोड एफिशिएंसी इज हाई, बोलना चाहिए एफिशिएंसी जो है पार्ट लोड पे बहुत अच्छी रहती है, कैन बी यूज एज अ बेस और द पीक लोड पे या बेस लोड पे इसको हम चला सकते हैं,
and it is useful for the irrigation purpose also. न्यू फ्यूल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी भी तरह की फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती क्योंकि ये पानी से चलने वाला प्लांट है। डिसएडवांटेज जो अभी देखेंगे तो पावर डेवलप डिपेंड्स ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी, यदि वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो पावर डेवलप नहीं कर सकते हैं। एंड प्लांट लोकेटेड ऑलवेज फ्रॉम द लोड, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच ए प्लांट डैम इज हाई कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि डैम को बनाना इतना आसान नहीं रहता है। एंड डिस्टर्ब इकोलॉजी, इकोलॉजी सिस्टम को डिस्टर्ब करता रहता है, जिस कारण से ये डिसएडवांटेज के रूप में भी काउंट होता है। हाइड्रोलॉजी क्या होता है मेनली? हाइड्रोलॉजी मेनली क्या है कि जैसे ही रेनफॉल हो रहा है और उसका किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं पानी का, कि कहाँ पे ले जाके उसको सुरक्षित कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से उठा के कहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज डील विद द हाइड्रोलॉजी। बिकॉज ऑफ रेनफॉल तो जाता है, लेकिन रेनफॉल को यदि प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, उसको कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है वो पानी कहीं पे जाके फिर एवोपरेट हो जाए वापस से, या कहीं पे आके मिल के वो चीज को डैमेज भी कर सकता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, और उसके हिसाब से हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं दूसरे मीडियम में। तो बेस्ड ऑन द मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड द एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड द अदर डेटा, जो रेनफॉल का डेटा है 20 से 30 साल के बेसिस पे लिया जा रहा है, ड्राई फ्रिक्वेंसी की बेस पे लिया जा रहा है, जो कि हमें बताता है कि रेनफॉल कितना हो सकता है, कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, और उसका पावर आउटपुट क्या हो सकता है पावर प्लांट का। तो कैलकुलेशन ऑफ द डैम कैपेसिटी, इफ द रेनफॉल स्पिलवे इज द एस्टिमेशन, देन इट कैन बी कैलकुलेट इजिली, कि हम कितना बता सकते हैं कि कितनी पावर जनरेट हो सकती है किलोवाट में, मेगावाट में, या आपके गीगावाट में। तो दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जहां की आप देख रहे हैं कंडेंसेशन आफ्टर दैट व्हेन द एवापोरेशन इज कंप्लीटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ वाटर, and the transpirations from the tree plant areas, stream flow which is taking place, after that evaporation and the transpiration from the sun surfaces, condensation is taking place, and the rainfall is coming from these sides, and the precipitations from the after the surface runoff, when the water is coming from the sky sides during the rainfall conditions, and the water is collecting in the through the percolations manner or the stream flow manner, and the water is collected in the finally in the ocean. This is the ocean surface where the water is collected, and here it is a cloud maintained after the condensation process is taking place when the evaporation is complete from the earth surface. So this is the basic fundamental of the hydrological cycle. Deal with the rainfall and the runoff study, and the cyclic movement of the water involve the following. First is the evaporation of water from the sea to atmosphere. This is the evaporation. It's taking place from sea to the atmosphere, and the precipitations of the vapor from the atmosphere. This is the precipitations process of vapor from the atmosphere, and after when the precipitations of the vapor is taking place, the flow of water is taking place from river back to the sea. वापस समंदर में चला जाता है पानी। दिस इज द मेन फंडामेंटल, कि जैसा कल हमने डिस्कस किया था, आपको क्लास में बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। कैचमेंट एरिया में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से उसको कैरी करके फिर हम दूसरी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे की रिक्वायरमेंट रहता है, डैम पे पहुँचाते हैं, डैम के बाद पैनी स्टॉक के थ्रू टर्बाइंस पे आता है। दिस इज द मेन फंडामेंटल्स थीम्स ऑफ द hydrological cycle. Hydrological cycle is again here presented in the numerous form. The ocean, जहाँ पे समंदर, जहाँ की पानी का evaporation हो रहा है, transpirations from the vegetations, जो leaves वगैरह में से आपका transpirations हो रहा है through the sun radiations, and after that when the evaporation is taking place from the this side seasides, and after that the precipitations of the rain or the snow, hail or the sleet falls in the river side again, and follow through the precautions form. Cycle is again and again moving. इस साइकिल इज गोइंग इज अगेन जैसे कि आपका ऑटो साइकिल में होता है, डीएल साइकिल में होता है कि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट, देन अगेन सक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रोसेस है। बारिश के मौसम में आपने सबने देखा कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने पर रेनफॉल वापस अगेन होने लगता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स वेयर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम. तो evaporation is taking place on this diagram.
वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर, कि पानी को ऐसा नहीं कि अलग से पैदा किया जाता है या एवापोरेशन होता है तो उस कारण से वाटर स्टोरेज होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद पे स्नो मेल्ट रन ऑफ होता है स्ट्रीम साइड्स पे, और वापस से वही प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है कि फिर समंदर में पानी इकट्ठा होगा, फिर ऑपरेशन होगा, इस तरीके की प्रोसेस होती रहती है कंटिन्यूसली। तो दिस इज अनदर डायग्राम इन विच द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल is represented. Solar energy condensation is taking place. Precipitation after the condensation, बादलों में से पानी का गिरना जो रहता है precipitation process कहलाती है, and make a water table and the infiltrations runoff is taking place after the precipitation process and going into the river side or the ocean sides water, and the groundwater is flowing when the not a water is going into the ocean or the another sides. हाइड्रोग्राफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोग्राफ? तो हाइड्रोग्राफ जो होता है ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में बनाया जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डिनेट जो कि वाई एक्सेस पे आप देख रहे हैं डिस्चार्ज रहता है और एक्स एक्सेस पे आपका टाइम पे रहता है। इट शो द वेरिएशंस ऑफ द रिवर फ्लो विद द टाइम। तो यहाँ पे रिवर का जो वेरिएशन है वो देखा जाता है टाइम के हिसाब से, एंड इट मे बी प्लॉटेड बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द वीक्स, मंथ्स एंड द इवन ईयर्स। आप डेटा जो है कलेक्टेड वीक बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथ बेसिस पे भी कर सकते हैं, इवन ईयर बेसिस पे कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डे बेस पे करना है तो डे बेस पे भी आप कर सकते हैं कि दिन में यदि 24 आवर्स है तो उसके बेस पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज हरदम वाई एक्सेस पर रहेगा और ये डिस्चार्ज आपका क्यूबिक मीटर पर सेकेंड्स में रहता है, और टाइम जो है एक्स एक्सेस पे यदि आप 24 आवर्स के बेस पे ले रहे हैं तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स में कितना पानी गिरा वो ले सकते हैं। वीक बेसिस पे लेना है तो आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कितना पानी हुआ। मंथ बेस पे लेना तो फर्स्ट वीक में कितना हुआ, सेकंड वीक में कितना हुआ, थर्ड वीक में कितना हुआ। एंड यदि ईयर बेस पे ले रहे हैं तो आपका डेटा 1 मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ में कितना आपका पानी गिरा है। तो यहाँ पे वही चीज को दिखाया गया है कि सपोज दैट ये आपका मंथ बेसिस पे है, तो ये मंथ आपके पूरे रफली का आइडिया ले लें, यदि 12 महीने हैं उसके बेसिस पे यदि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है उसको देखने लायक है। तो यदि सपोज दैट यहाँ पे इस मंथ में इतना 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड इकट्ठा हुआ पानी, और मैक्सिमम जो वाटर आप देख रहे हैं यहाँ पे राइज जो कर रहा है 110 का है, और 110 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मंथ में। सपोज दैट ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद फिर फाइनली आप देख रहे हैं सडन फॉल आता जा रहा है कि वो पानी इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है या कम हो गया पानी। तो मीन जो फ्लो रहता है सभी का एवरेज आप जब ले लेंगे तो ये मीन फ्लो बन जाएगा 48.33। तो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोग्राफ वेयर द वाटर साइकिल इज रिप्रेजेंटेड, एंड द वाटर जितना भी डिस्चार्ज फ्लो रेट है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हर महीने, हर टाइम के हिसाब से या हर वीक के हिसाब से कितना चेंजेस हो रहा है। शुरुआत में पहले हमने देखा यहाँ पे पानी ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, फिर और ज्यादा डिस्चार्ज फ्लो रेट बढ़ता गया। तो दिस इज द कॉल्ड द हाइड्रोग्राफ कि पानी का जो सर्कुलेशन है, डिस्चार्ज फ्लो रेट है वो कितना हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ का जो इम्पोर्टेंस है जो मेनली रहता है कि दो तरीके से हम देखते हैं उसको। जैसे यदि हम डे 1 और डे 2 की बात करें तो डे 1 में सपोज वो पीक 1 पे, पीक पे चला गया एकदम, यहाँ पे ये देख रहे हैं पीक रेनफॉल भी हो रहा है तो पीक यहाँ कंडीशंस भी आ गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे डे 1 पे स्टॉर्म रन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। फिर डिस्चार्जिंग होनी पानी की चालू हो गई, तो डिस्चार्ज होने के बाद जो डे 2 पे है नॉर्मल बेस फ्लो हो रहा है यहाँ पे पानी का। तो ये चीजें ग्राफ में रिप्रेजेंटेड हो रही हैं कि हाइड्रोग्राफ का मेन इंपॉर्टेंस क्या होगा। Give the discharge available at the different times, day, week, month of the year. Maximum and the minimum runoff can be also studied. It gives the mean runoff. It helps in the study the effect of the storage on the flow. The area under the hydrograph is the total volume of the water for the given durations. Phases of the hydrologic cycle, तो आपका डेली बेसिस पे भी हो सकता है ये जो आप देख रहे हैं, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, तो मंथली बेसिस के लिए अलग कर्व आप देख रहे हैं, और एनुअल बेसिस पे भी हो सकता है, ये भी सारी चीजें हैं। तो एनुअल बेसिस पे ये आपका अंदर साइड पे ग्राफ है, डेली बेसिस पे ये अंदर वाला ग्राफ है आप जो देख रहे हैं, मंथली बेसिस पे बाहर वाला ग्राफ है। तो ये अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ टाइम, कितना जितना 20% उसके हिसाब से 40% है, 60%, अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो रेट कंडीशन जो चेंज होती आ रही है। तो फ्लो रेट की कंडीशन जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म रहे, वो डेली बेसिस, मंथली और एनुअल बेसिस पे चेंज हो सकती है। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो रहता है जनरली कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सम फेसेस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेड एट ए पर्टिकुलर साइट। जो रिकॉर्ड किया जाता है वो पानी का
डिस्चार्जिंग रिकॉर्ड रहता है, डिस्चार्जिंग और स्टॉर्मिंग रेट रहता है, एंड इट मे बी रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल caught in the particular rain gauge. And although for the most hydrological purpose, a sort one user should recognize the greater the chances that there has been condition of deviations. And after that, the hydrograph move to the flow duration curve, in which the discharge is represented in the flow manner कि कितना flow हो रहा है, कितनी capacities है. According to the in the vertical ordinate, discharge is represented in the meter cube per second, and the horizontal ordinate is the x ordinate represented the time in the percentage form. So flow duration curve, it is represented and showing the at a plot of a discharge versus the percentage of time for which the discharge is available, and the flow or the discharge can be expressed as the cubic foot per second, or time is the unit of time, percentage of time is also known as the power duration curve. It is also known as the power duration curve. It is also represented in the day basis, also presented in the diagram. And this is the hour basis. कि आवर बेसिस पे यदि कैलकुलेट करना है तो हम उस पर भी देख सकते हैं. So power duration curve can be drawn on hour basis also, day basis, monthly basis. And the mass curve, where the mass of water is taking place, it's a mass curve, maximum intercept between the line AB and the mass curve is the reservoir capacity. The unit used for the storage is either cubic meter or the day second meter. A day second meter is the flow at the rate of 1 meter cube per second for a 1 day, and equal to the, this is the meter cube, 86400 meter cube. And the capacity of the plant is based on the storage capacity, which can be modified for the storage for the same mass curve. This is the mass curve, in which the time is represented in the week, and the cumulative flow is represented in the vertical ordinate. The reservoir capacity, this is the presented in the graph. This is the reservoir capacity, जहाँ की आप देख रहे हैं curve is diverting and again is moving from here this sides. The slope of the mass curve at point gives the rate of inflow at that instant. Suppose that if the water is rain falling, some time is the maximum, and after some time it is going into the decreasing manner, and again it is in the increasing manner. तो ये जो आपका मास ड्यूरेशन कर्व है या मास फ्लो रेट कर्व है, इसी चीज को दिखा रहा है कि जो इनके बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, दिस इज कॉल्ड अ मास कर्व. तो मास कर्व, दैट इज द cumulative volume of the water that can be stored from a stream flow and the versus of the time in the days. तो टाइम डेज में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है. इट शोज अ मास कर्व, maximum intercept between the line AB and the mass curve is known as the reservoir capacity, and this line is showing the reservoir capacity कि कितनी capacity तक पानी उस पे आ सकता है. And the slope of the mass curve at a point gives the rate of inflow at that instant. Rainfall mass curve, ये आप जो देख रहे हैं rainfall mass curve at a particular of time in hours. तो 6 hours minus of 4 hours, यहाँ पे जो डिफरेंसेस निकाला गया है वो ये है. तो 6 आवर्स में 15 सेंटीमीटर का पानी गिरा था और 4 आवर्स में आपका 10 सेंटीमीटर का पानी गिरा था. तो 2.5 सेंटीमीटर पर आवर का यहाँ पे आपका एवरेज रेनफॉल आ गया इन 4 to 6 आवर्स. ये चीज यहाँ पे दिखाएगी. तो ये मास कर्व ये प्रेजेंट कर रहा है कितना आपका रेनफॉल हो रहा है. What are the various features for the site selection for a hydropower plant? First parameter is the availability of water. This is the prime factor. यदि पानी अवेलेबल रहेगा तो ही हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में सोच सकते हैं. वाटर स्टोरेज की यदि प्रॉब्लम नहीं है तो सोच सकते हैं. हेड ऑफ द वाटर इज इजिली अवेलेबल या मेंटेन कर सकते हैं तो आप हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं. जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यदि अच्छा है या वहाँ पे हम मैनेज अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, फाउंडेशन अच्छी तरीके से लगा पा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन की वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, या बोलना चाहिए एक्सेसिव करोजन और डैमेज को हम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हम फिर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में सोच सकते हैं. सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर. एक्सेस टू द साइट, इजली हम साइट को जा सकें, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें. पानी यदि कुछ भी वहाँ पे भी हमें ले आना है, ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको हम इजली कर सकते हैं. और मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. यदि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल या नेविगेशन टाइप के जगह पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जहाँ पे कि पावर प्लांट की कॉस्ट वहाँ पे अधिक रहती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन फीचर्स फॉर द पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट.
So it may be free from the earthquake damage, away from the zone, free from the mineral deposit of the harmful nature, and the less possibility of the sediment collections. This is the layout of the hydroelectric power plant, in which the dam is represented here. At the head is maintained for the supplying of the water from the penstock areas, penstock pipes through the inlet valve in the turbine blades. After that, the attacking in the turbine blades, the blades will be moving in a right manner and generating the energy from the mechanical to electrical form through the electrical generator, because of the turbine shaft is connected to the electric generator shaft, and the electrical energy is transferred to the transformer in the power lines, and the water flow rotate the shaft here. And after the expansion in the turbine, water is flowing through the draft tube in the river sides. तो ये पानी का जो है फैलाव या बोलना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिवर साइड में वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू हो रहा है, एंड द सर्ज टैंक इज मेंटेन फॉर द फ्लडिंग ऑफ द water. If the water is supplying from the dam side is more, the surge tank is maintain a pressure level of water, and the storing of the water is the more than according to the capacity. What are the essential features of requirement for the water power plant? And the essential features depending on the number of parameters. First is the catchment area, the second is the reservoir, third is the dam, fourth is the inlet water way or the spillways, fifth is the conduit, sixth is the surge tank, seventh is the prime movers, eighth is the tail race or outlet waterway, ninth is the powerhouse. So these are the parameters, features of the power plant जो कि रिक्वायरमेंट रहेंगे पावर प्लांट के लिए, जरूरत है. कैचमेंट एरिया के बगैर काम ही नहीं कर सकते हैं. इट इज द बिहाइंड ऑफ द डैम, डैम के पीछे साइड पे जो एरिया रहता है जहाँ की पानी इकट्ठा रहता है, दिस इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया. तो दिस इज द फ्लो सीट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ की आप कैचमेंट एरिया देख रहे हैं. देन उसका यहाँ पे डैम दिख रहा है आपको. कैचमेंट एरिया इज द बिहाइंड ऑफ द डैम, and after the dam which is supplying the water, the sluice gate or the valve, and the penstock is the pipe, cast iron pipe supplying the water from this pipe through the turbine. Inlet valve is this one, turbine is here, tail race is here, alternator or the generator side is here, draft tube is here, three phase output is here. So all the things are in the flowing manner, attaching in the flowing manner. वाटर इज सप्लाइंग फ्रॉम दिस स्लाइस गेट और वॉल. कितनी जरूरत है पानी की उसके हिसाब से सप्लाई किया जाता है पानी को और दिखाया जाता है. तो कैचमेंट एरिया जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, दिस पिक्चर इज शोइंग द कैचमेंट एरिया where the water is collected or the stored in a numerous form, and it is the behind of the dam. रिजर्वायर एक ऐसी जगह जहाँ की वाटर को कैचमेंट एरिया से लेके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है. और मेन पर्पस जो रिजर्वायर का रहता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट वाटर इज सप्लाइंग टू द डैम साइड. इफ इट इज लेस देन द रिक्वायरमेंट, then water is supplying from the reservoir, and if the more than of water is available in the dam side, then dam forcefully water is going into the reservoir side. कि डैम से जो पानी है फिर रिजर्वायर साइड में भी भेजा जाता है. तो डैम इज built across a river for to function to impound of the river water for storage and to create the head of the water. तो पानी को इकट्ठा करने काम करता है एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पानी को स्टोर करने काम करता है डैम. और एक रिवर को एक लेवल मेंटेन करने का बोलना चाहिए, जो पानी है रिवर के अंदर उसको इम्पाउंड करने का भी काम करता है डैम. तो ये करीबन लार्ज हाइट के डैम बने रहते हैं अप टू द 100 मीटर के. स्पिलवेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए स्पिलवेज, दीज आर कॉल्ड स्पिलवेज, दीज आर कॉल्ड स्पिलवेज जितने भी आपको दिख रहे हैं. तो व्हेन द वाटर एंटर द रिजर्वायर बेसिन्स, the level of the water rises. To relieve of these excess water at a structure is provided the body of dam or near the dam on the periphery of the dam. The safeguarding structure is called the spillways. तो spillways safeguarding का काम करते हैं. Conduits जहाँ की पानी को भेजा जाता है, that is called also a penstock channels. Hydraulic channel which leads the water to a turbine, and the tail race which conduit the waters, and it may supply the water in the river sides. Open conduit and the closed conduit, दो तरह के conduit इस्तेमाल किए जाते हैं. तो open conduit में canals या flums होते हैं,
और क्लोज कंड्यूट में टनल्स और पाइपलाइंस होती हैं, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है। और सर्ज टैंक की बात करें तो एक स्मॉल रिजर्वायर टैंक रहता है, यहाँ की वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कंडीशन, और सप्लाई किया जाता है पानी को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन द टर्बाइन ब्लेड साइड्स। दिस इज द रिजर्वायर। सर्ज टैंक इज installing in between of the turbine blades and the reservoir according to the requirement of the turbine blades. Water is supplying to the air at a certain pressure level. The pressure tunnel at which the water is supplying for the penstock on the turbine blades. After the expansion in the turbine blades, water is going into the draft tube into the tail race. That is called a river, where it is water is storing again and again. Prime mover, this is the turbine. Mainly function of the prime mover is the converting of the one form of energy to the another form. That is the mechanical energy into the further electrical energy. Draft tube, basically main purpose allowed to the turbine to be set above the tail water level without the loss of head. जहाँ की पानी को एक्सपांसन होने के बाद टरबाइन की ब्लेड से एक ट्यूब के द्वारा रिवर साइड पे लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट ट्यूब। ये डिफ्यूजर एक्शन के थ्रू काम करती है, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वाटर को रिवर साइड पे भेज दिया जाता है। तो ये आपका कॉनिकल शेप में भी रहता है ड्राफ्ट ट्यूब, यदि कभी आप देखेंगे तो कॉनिकल शेप में भी रहता है। एंड द पावर हाउस, इट इज अ बिल्डिंग इन विच द टरबाइन अल्टरनेटर एंड द ऑक्सिलरी प्लांट्स आर द हाउस्ड, where it is the mainly electricity is generated। टरबाइन अल्टरनेटर ऑक्सिलरी प्लांट को जहाँ पे हाउस किया जाता है कि बोलना चाहिए फैमिली के रूप में, उसे पावर हाउस का नाम देते हैं। तो दीज आर द कंटेंट ऑफ द टुडे लेक्चर्स। थैंक यू। Tomorrow I will discuss the another topic, type of the dam, spillways and the another elements of the power plants.